Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss again an important question for your MSU 001 exams for the summer exams. So आज का हमारा क्वेश्चन है explain dynamics of power in local communities with reference to Mills and the Hull. Power dynamics in local communities is an important topic in sociology, focusing on how authority, influence, and control are distributed and exercised among individuals, groups, and institutions at the community level. जो पावर डायनेमिक्स होती है लोकल कम्युनिटीज़ में, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में कि कैसे अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है सोसाइटी में और एक्सरसाइज होता है अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस एट द कम्युनिटी लेवल. This includes everyday interactions in neighborhoods, towns, and cities where decisions on resources, policies, and social norms affect collective life. ये सारी चीज़ें जो पावर डायनेमिक्स हैं ये आपकी एवरीडे लाइफ में भी होता है, जैसे कि नेबरहुड्स में, टाउन्स में, सिटीज़ में, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है ऑन रिसोर्सेज, पॉलिसीज़ एंड सोशल नॉर्म्स. ये सारी चीज़ें कलेक्टिव लाइफ को अफेक्ट करती हैं. Two key theorists, C. Wright Mills and Robert Dahl, offer contrasting views. Mills' elitist model emphasized concentrated power while Dahl's pluralist framework highlight dispersed influence. यानी कि जो मिल्स है, C. Wright Mills, he gave elitist model where he talks about concentrated power रहती है, एक ही ग्रुप के पास पावर रहती है, while Dahl says कि जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप्स के हैंड्स में होती है. In sociology, power is not just coercive force but also involves persuasion, negotiation, and social capital. In local communities, it operates in arenas like urban planning, education, and economic development. जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे पावर डायनामिक्स किस में भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग में, एजुकेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी होती है. Mills and Dahl provides lenses to analyze this. Mills see it as a hierarchical and elite driven. जो पावर होती है लोकल कम्युनिटी में, अकॉर्डिंग टू मिल, इट इज़ हायरार्किकल एंड elite driven, while Dahl views it as a participatory and competitive. यानी कि अलग अलग ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं और पावर के लिए कंपटीशन होता है. Dahl's pluralist perspective. Robert Dahl's pluralism posits that power in local communities is decentralized and fluid. Decentralized मतलब अलग अलग लेवल पे पावर होती है और फ्लूइड होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के पास फिक्स्ड है पावर. Through his case study of New Haven, Connecticut, Dahl demonstrated that no single group dominates all decisions. तो जो दल है उन्होंने स्टडी करी न्यू हेवन कनेक्टिकट में, और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सिर्फ एक ही सिंगल ग्रुप नहीं होता जो डोमिनेट करता है हर डिसीजन को. Instead, power is fragmented among competing actors such as business leaders, unions and residents. Instead वो कहते हैं कि जो पावर है वो फ्रेगमेंट है अमंग competing actors, जैसे कि सिर्फ एक ही ग्रुप, सिंगल ग्रुप डोमिनेट नहीं करता है पावर को, और जो पावर है ना वो फ्रेगमेंट है अमंग कंपीटिंग एक्टर्स, जैसे कि बिजनेस लीडर्स हो गए, यूनियंस हो गए, रेजिडेंट्स हो गए, हु फॉर्म इशू स्पेसिफिक कोलिशन. कि अगर सपोज करो एक कोई इशू, एक मैटर है, तो उस पर अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे और उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा. आर्ग्यूड दैट नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग डू एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, इन्फ्लुएंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़. नेगोशिएशन और बार्गेनिंग होती रहती है. Influence shifts based on the topic with public participation allowing. He also says that influence shift होता है based on the topic with public participation allowing diverse voices. जो टॉपिक है उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस भी शिफ्ट होता है, चेंज होता है, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो अलाउ करती है कि अलग अलग लोग अपनी वॉइस को आगे लाएं, अपनी बात कहें आगे आके. Thus model suggests local power is democratic as seen in urban areas
where activism can reshape policies. Now, coming to elitist perspective, C. Wright Mills challenges Dhal's pluralism, arguing that power is concentrated in a cohesive power elite of corporate, military, and political leaders. तो सी राइट मिल्स कहता है, वो चैलेंज करता है, क्रिटिक करता है दल्स के प्लूरलिज्म को, ये कह के कि जो पावर है ना वो कंसंट्रेटेड है एक ही ग्रुप पे, विच इज़ एलाइड ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स. इन लोकल कम्युनिटीज दिस मैनिफेस्ट एज एलाइट्स यूजिंग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स टू मेंटेन कंट्रोल. वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स अपने यूज़ करते हैं अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए. मिल्स आर्ग्यू करता है local elites like wealthy families or corporations maintain their dominance through media, finance and social ties. जो local elites हैं, जैसे कि of course wealthy families, corporations होती हैं, वो अपनी dominance कैसे maintain करते हैं? मीडिया के थ्रू, फाइनेंस एंड सोशल टाइज. Mill's view suggests how elites' dominance leads to alienation and inequality in society. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एलाइट्स ही सारे वो करेंगे, डिसीजंस लेंगे, तो ऑफ कोर्स जो अलग जो और लोग हैं उनकी एलिनेशन बढ़ेगी और इनइक्वालिटी तो सोसाइटी में बढ़ेगी. नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, while examining power dynamics in local communities, Dhal and Mills provided different opinions. While Dhal provides a pluralist approach highlighting democratic potential, Mills provides an elitist view arguing systemic biases. धल के हिसाब से डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, और मिल्स कहता है कि सिस्टमिक बायसेस है, सिर्फ एलाइट्स के ऊपर ही कंट्रोल है. दिस एनालिसिस अंडरस्कोर्स द रेलेवेंस ऑफ देयर थ्योरीज फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, encouraging balanced approaches to foster inclusive community structures. Okay, so this was your answer for this question. Explain dynamics of power in local communities with reference to Mills and Dhal. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दी है. अगेन आई एम सेइंग, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रखा होगा, आप वो भी देख सकते हैं. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू सो मच.